अपने सामान रखने जगह की CV John, can you start the opening prayer, please? Yes, brother. Almighty God, our gracious, loving Heavenly Father, we praise you and thank you for this blessed day you have given us. Yes, Lord, it is your priority for us that we be together in your presence, look into your face, and to be enshrined. We thank you, Father, for the privilege of being with you, having the entrance into the Holy of Holies to meet our Almighty God in actuality, in 100% assurance that we are with you. We thank you, Father, for enabling us as the church to come together, to worship you, serve you, love you, and pray for our needs. And in all these things, Lord, you are available for us. You will never have any lethargy on our side. You will ever be open to listen to our cries and our weeping, our struggles. You see, and you have delivered Israel when you saw them struggling under slavery of wicked king. Lord, we know that the kings of this world are different from pharaohs. And guide us and provide for us, protect us from all evil. We thank you, Father. Thank you for this fellowship coming around your word this morning. Speak to us, Lord, from your heart, that we may listen and learn and follow you for the day as well as the week and the weeks ahead. We thank you, Father. We can come to you with all our needs. We are not in a safer place. As you know it all, we have been protected so preciously because we are your precious treasure. We bless you, Lord, for instilling in us the Spirit of Christ, which makes us to call you above, Father. We thank you, Father. We bless you, Lord, in our deliberations this morning. Before getting into the prayer session, the word of God, singing and exalting your name and offering our worship and thanksgiving also, Lord. Help us to do it in pure motivation so that we will have the joy of the Lord filling us and nothing else can change our motivation and also focus on you, Lord. We pray for our believers, families, and we pray for the fathers and mothers and children, the family, the fellowship, and those who are weak and sick among us, Lord. We know that you are going to deal with us with your power and glory, with your strength available for us this morning, Lord. Help us to walk worthy of your calling, that we may be seen as your disciples living in this world, loving one another, that the people will know that we are your disciples, Lord. We thank you, Father. Keep us, Lord, closer to you. In Jesus' precious name we pray. Amen. 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 Brother Tapa? Yeah, brother. आइए सॉन्ग गाएंगे सॉन्ग नंबर 156 इन हिंदी और तेलुगु में 203. स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया स्तुति हो यीशु तेरी, स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको
हमको बरी। स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। जमा हुए हैं हम आज, हालेलुया गाते हैं मिलकर हम साथ। जमा हुए हैं हम आज, हालेलुया गाते हैं मिलकर हम साथ। तू ही हमारा है त्राता और दाता, और तू ही हमारा है सब। तू ही हमारा और त्राता और दाता, और तू ही हमारा है सब। स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया स्तुति हो यीशु तेरी। स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। किससे निकाला हमें, हालेलुया किया है तूने आजाद। किससे निकाला हमें, हालेलुया किया है तूने आजाद। स्तुति अब गाए हम सब क्यों न तेरी, और हो जाए हम तेरे साथ। स्तुति अब गाए हम सब क्यों न तेरी, और हो जाए हम तेरे दास। स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया स्तुति हो यीशु तेरी। स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। सारे फरिश्ते एक साथ, हालेलुया गाते हैं मिलकर हरदम। सारे फरिश्ते एक साथ, हालेलुया गाते हैं मिलकर हरदम। स्तुति वे करते हैं तेरी के हमेशा, और करते नहीं है विश्राम। स्तुति वे करते हैं तेरी हमेशा, और करते नहीं है विश्राम। स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया स्तुति हो यीशु तेरी। स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। जाएंगे जब हम आसमान, हालेलुया गाएंगे मिलकर हरदम। जाएंगे जब हम आसमान, हालेलुया गाएंगे मिलकर हरदम। पर्वत बजा के आवाजें मिला के हम गाएंगे सुबह और शाम। पर्वत बजा के आवाजें मिला के हम गाएंगे सुबह और शाम। स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया स्तुति हो यीशु तेरी। स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी। स्तुति हो तेरी कि तूने बचाया और किया है हमको बरी।
सबों को जय मसीह। आज प्रार्थना में जाने से पहले दूसरा शमूएल 24 अध्याय का 24 वचन हम पढ़ेंगे। वॉइस इज ऑडिबल ना? जस्ट वांट टू कंफर्म। Yes, yes. दूसरा शमूएल 24 अध्याय का 24 वचन। राजा ने अराउनाउ से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने कलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु की सहायता के लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस सवेरे के समय आपकी ओर हम ताकते हैं। आपका वचन सदा के लिए स्थिर वचन है। आप प्रभु जी इस वचन को हमारे बीच में तोड़कर बांटिए, हमारे समझाने के लिए हमारे मनों को खोलिए और प्रार्थना के लिए हमें आपके वचन के द्वारा शुद्ध कर तैयार करें। वचन के द्वारा ताकर हमें तैयार करें। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। समय को बहुमूल्य प्रभु जी हमारे लिए बनाइए, क्योंकि इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो इस सवेरे के समय हमारा प्रार्थना का शीर्षक ये होना चाहिए कि जैसे दाऊद का मन था, ऐसे मन को प्रभु हमें भी प्रदान करें। जैसे अक्सर हम भजन 91 को जब हम देखते हैं, साम 51 को, तो हम इस तरीके से एक पश्चाताप के मन प्रार्थना की तरह हम देखते हैं कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया, पाप करने के बाद प्रभु के सामने वो कबूलियत में आया है, ऐसा करके। और उसमें इतनी बातों को दाऊद मांगता है, जैसे कि भजन 91 के साम 51 वर्स 11 में वो बीच भाग में कहता है, अपने पवित्र 10 वचन में कहता है, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से, रिन्यू ए राइट स्पिरिट विद इन मी। एक नए आत्मा को एक नए सिरे से मेरे भीतर करने के लिए वो कहता है। आज हमारी इस सवेरे के समय ऐसी हमारी प्रार्थना हो चाहिए, रिन्यू द राइट स्पिरिट विद मी। क्योंकि उद्धार पाने के बाद जब हम आत्मा में वी हैव बीन सील्ड बाय द स्पिरिट, उसके बाद हम उस आत्मा के चलाए चल रहे हैं जरूर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आत्मा हमारे अंदर, आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हमको वचन के द्वारा सिखाते हुए, मार्गदर्शन करते हुए चला तो जरूर है, पर हम कितना उस आत्मा को हमारे जीवनों के अंदर प्रज्वलित करते हैं, कितना हम आत्मा की नवीनता में चलते हैं, ये हमको व्यक्तिगत रीति से परखना बहुत जरूरी है। कई बार हम एक रीति रिवाज में या फिर एक जो प्रभु के लिए जिसके लिए हमको प्रभु ने चुना, उसको पकड़ने के विषय में या उसके बुलाहट में चलने के विषय में हम शायद ठंडे पड़ जाते हैं, या फिर हम एक बलिदान पूर्वक चाल जो चलना प्रभु हमसे अपेक्षा करता है, उसमें हम चूक जाते हैं। दाऊद को देखिएगा, दाऊद का मन जो जिस वचन के भाग में हम देखते हैं, वो कहता है, I shall not give unto the Lord that costs me nothing। जो उसको प्रभु के लिए देना है, उसके विषय में वो बलिदान के साथ देना चाहता है। ऐसे नहीं कि जो हो सकता है वो मैं कर दूंगा। He is not a exponent of comfortable giving, मतलब आरामदायक, मतलब कई बार जो मुझसे बन पड़ता मैं करूंगा, ऐसी हमारी मसीहत की चाल होती है। तो प्रभु हमसे चाहता है कि जो कुछ हम करें, क्योंकि उसने हमको दाम दे के मोल लिया। पौलुस कहता है, हम अपने आप अब मैं मेरा नहीं हूं, जिसने मुझे लहू दे के मोल लिया है उसका मैं बन चुका हूं, कहता है। I no longer belong to myself, but he that bought me, purchased me with his precious blood, I belong to him। तो अगर एक स्लेव की तरह हम एक पुराने दासत्व में थे, उस दासत्व में छुड़ाकर एक नए दासत्व में आए हैं, पर ये दासत्व पुराने दासत्व के समान नहीं, आजादी से भरपूर दासत्व है, लिबर्टी है इस दासत्व में,
जो प्रभु की सेवकाई है, उसमें हम कैसे, क्योंकि इस भूमि के भाग को अगर आप देखोगे, दिस प्लेस दैट अरनाव की जो खलिहान को जिसने दाऊद ने खरीदा है, वहीं पर प्रभु का घर बनाया जाता है। So when the foundation of the house of God is not with a price, जैसे अगर हम पहले कोरिन्थियों की पत्री 6:20 को देखेंगे, 1 Corinthians chapter 6 verse 20, पहले कोरिन्थियों की पत्री 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, we have been bought by with a price। वो प्राइस क्या है? पहले पत्रस की पहला अध्याय का 18-19 में हम जानते हैं कि हम सोना चांदी से हमारा छुटकारा नहीं किया गया है। किसी ने जो जगत संसार की दाम है, उस दाम को देकर हमको नहीं मोला है। बट कैसा हम खरीदे गए हैं? जो दासत्व की बंधुआई में हम थे, शैतान के और पाप के बंधन में जो हम मरे हुए थे, हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को, उसी पहला पत्रस 18-19 में, पहला अध्याय के 18 और 19 में हम देखते हैं, नॉट बाय गोल्ड एंड सिल्वर बट वी हैव बीन रिडीम्ड विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये मंडली का जो नींव है, एक बहुत बड़ा दान, अपने आप को परमेश्वर जो पाप रहिता, जो आपके लिए और मेरे लिए पाप बन गया, और आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लाद कर जो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, लहू बहाकर आपको और मुझे उसने छुटकारा दिलाया है, हमको मोल लिया है, राइट। और कब किया है काम को? रोमियो की पत्री 5:8 कहता है, जब हम पापी ही थे। ऐसा नहीं, जब हम किसी विषय को मोलते हैं या खरीदते हैं, तो हम कब खरीदते हैं? सड़ा हुआ टमाटर थोड़ी खरीदते हैं। मार्केट में जाएंगे 1 किलो टमाटर लाने के लिए, या मुझको या भाई तापा को अगर कोई बोलेगा सब्जी ले आने के लिए, तो हम जाके क्या सड़ी हुई चीज लाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम परखेंगे, एक टमाटर पकड़ेंगे, देखेंगे, चाटेंगे, कीड़े है कि नहीं देखेंगे, कुछ खराबी है कि नहीं, देख मोल के चाट कर फिर निगोशिएट कर दाम का पूछ। पर या while we were yet sinners Christ bought us, right? We did not deserve to be purchased। हमको मोल लेने के लिए हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, अच्छाई नहीं थी, हम सड़े हुए थे, मरे हुए थे। Yet God loved us, Christ loved us, right? And purchased us while we were yet sinners। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया है और हमको मंडली के तौर पर स्थापित किया। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, प्रेरितों का काम 20:28, Acts of the Apostles chapter 20 verse 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हम व्यक्तिगत रीति से मोल लिए गए हैं और मंडली के थे मांडलिक रीति से भी हम मोल लिए गए हैं। So collectively we have been purchased by the precious blood of Jesus Christ, right? और इस मंडली को अपने बहुमूल्य लहू से मोल लेने के बाद मत्ती 16:18 में कहता है, मैं अपनी मंडली बना रहा हूं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्क है। लगातार इस काम में प्रभु जो है बड़े मन लगाकर वो काम कर रहा है। और इस बनाने की प्रक्रिया में पहले कोरिन्थियों की पत्री 3:9 के अनुसार, पहले कोरिन्थियों की पत्री 3, 1 Corinthians chapter 3 verse 9 मैं पढ़ता हूं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्या है हम? We have been appointed as co-workers in this work, which is to build the church। अब बताइए, जिस मंडली को उसने दाम देकर मोल लिया, कैसी दाम? दाऊद ने तो कॉस्टली गिविंग दिया है, चांदी के शेकल दिए हैं, 50 दिए हैं, जो उस भूमि के मूल्य था उससे भी बढ़कर उसने दिया है अरनाव को। एक्चुअल प्राइस से बढ़कर दिया, बहुत बड़ा, 4 गुना 5 गुना दिया उसने। यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। जो फिजिकल टेम्पल का विषय में भी हम देखते हैं, देयर वाज अ कॉस्ट, एज अ प्राइस व्हिच वाज मच मोर देन वाज एक्सपेक्टेड। बट इन द स्पिरिचुअल टेम्पल्स केस, जो आत्मिक घर है, जो आत्मिक मंदिर है, उसके विषय में अगर आप देखोगे, मसीह ने अपने आप को रिक्त कर दिया,
खाली कर दिया। जब हम पापी ही थे अपने आप को खाली कर दिया, रिक्त कर कर समर्पित कर दिया, और उस निर्माण के काम में आपको और मुझको मोल लेकर काम के लिए ठहराया है, एज कोवर्कर्स फॉर हिम। तो हमारा काम कैसा है इस निर्माण के काम में? क्या हम दाऊद के समान हम कर रहे हैं? I will not give unto the Lord that which costs me nothing. क्या ऐसे मन को लेकर चल रहे हैं? या फिर जो हमसे मन पड़ता है, अगर हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक व्यवहार को अगर हम देखेंगे तो वी डू, छोड़िए अगर मंडली के बारे में छोड़िए, जब हम पर्सनल विषयों के लिए भी हम देखेंगे, क्या दाम देकर प्रभु के साथ समय बिताते हैं? या फिर जब हमसे मन पड़ता है तब वचन पढ़ते हैं? दाम देकर हम प्रार्थना में बैठते हैं, या फिर हमसे मन पड़ता है तो हम करते हैं? दाम देकर प्रभु के घर में आते हैं समय पर? समय पर आना भी एक छोटा सा प्राइज है। क्या दाम देकर आते हैं? प्रभु की सेवकाई में दाम देकर हम अपने आप को उपलब्ध करते हैं, या फिर हमसे मन पड़ता है तो हम करते हैं? अगर इस विषय को जब मैं कह रहा हूं तो किसी का न्याय नहीं, पर मैं अपने आप को जब परख कर देखता हूं तो इसमें बहुत कमी में दिखाई पड़ता हूं। We do not pay the price as a co-worker in the building of the house of God. प्रभु करे ऐसे मन। देखिए वचन भर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, राइट? जब मार्कुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह वहां बैठा है, मंदिर में बैठा है, और लोग जो है अपने दशवांश लेकर आकर दे रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि दशवांश देकर हम अपना काम कर लेते हैं। दशवांश दे दिया, हाँ जी हमने तो बहुत कर दिया है। जगत के लोग दशवांश नहीं देते, हमने दे दिया बस हो गया। दशवांश हम लोगों के बीच में बांट देते हैं, सोचते हैं कि लोगों को बांटने से अपनी प्रशंसा होती है। ऐसा एवरीथिंग वी डू इट एट ए कंफर्टेबल और एट ए दिस थिंग, राइट? बट उस विडो को याद करिए, विधवा को। क्या है? प्रभु यीशु मसीह खुद गवाही देता है 44 वचन में, शी गेव एवरीथिंग, बोलता है अपना सब कुछ दे दिया उसने। अपनी, हिंदी में तो बहुत सुंदर है वो वचन, अपनी जीविका दे दी, कहता है। हर लाइफ, whatever was her living, not life, her living present continuous, मतलब प्रस्तुत काल का जो भी था उसका और भविष्य का जो कुछ था वो सब कुछ दे दिया, जीविका दे दी उसने। और पिछले बुधवार को हम देख रहे थे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 वचन में, बच्चा था, छोटा सा बच्चा, 5000 पुरुष थे वहां पर। याद रखिएगा, वहां स्त्रियों को नहीं गिना गया, बच्चों को नहीं गया, केवल 5000 पुरुष थे। पर उस पुरुषार्थ दिखाने वाला एक ही लड़का था, जिसने अपना सब कुछ, जो अपना बल और शक्ति के लिए, अपने खुराक के लिए जो था, सब कुछ लाकर प्रभु के पास सौंप दिया। फिर अगर पौलुस को देखेंगे, फिलिपियों की 3 अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 8, इसको पढ़ता हूं। वरन मैं अपने प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्या समझता है? He's counted everything that he has, his education, his social stature. फरीसियों का फरीसी था, गमालियल के पैर के पास पढ़ चुका था। वो प्रेरितों में भी अपने आप को एक गिनता था। वो सनहेद्रिन में एक प्रमुख सदस्य था। उसके द्वारा एक स्पेशल स्क्वाड के लिए, मतलब जो मसीहों को पकड़कर मारने वाले स्क्वाड के लिए वो एक नायक के समान ठहराया गया था। घोड़े थे उसके पास, सब कुछ उसने कूड़ा मान लिया। That he could apprehend, क्या बोलता है 11 वचन में? वो कहते हैं उस 10 वचन में कहता है वो आगे बढ़ता, कूड़ा समझता है, इतना ही नहीं, वो आगे बढ़कर सब कुछ प्रभु के लिए दुख सहना लाभ को मानता है। किस लिए? ताकि वो जिस बात के लिए वो पकड़वाया गया, राइट, जिस बात के लिए प्रभु ने उसको पकड़ा, जैसे 3:11 में कहता है, मैं किसी भी रीति से 12 वचन में देखिएगा क्या कहता है, 14 वचन में, राइट, एक मिनट,
हाँ 12 वचन में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं कि उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। किस लिए मसीह ने मुझे खरीदा, इतने बड़े दाम को देकर किस लिए मुझे पकड़ा, उसको समझने के लिए भी वो दाम चुका रहा है। फॉरगेट इट, वो मसीह के लिए कुछ करने के लिए या फिर मंडली के कुछ करने के लिए नहीं, अपने भी समझ के लिए। कई बार हम नहीं जानते कि मसीह ने मुझे क्यों पकड़ा है, उसको पकड़ने के लिए, उसको समझने के लिए वो सब कुछ कूड़ा समझकर अपने आप को समर्पित कर दे रहा है। पर हम तो सब समझ लेते हैं, राइट? कैसे हैं हम सबको समझ, हमको लगता है कि हमको सब मालूम है, सब समझते हैं। प्रभु ने मुझे ये करने के लिए कह दिया, मैं कर दूंगा, या फिर वो कर दूंगा, मैं कर दूंगा। हाँ, उसमें क्या है, प्रभु ने मुझे मतलब वी सीम टू बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। बट तो यहाँ पौलुस देखिएगा, उसको समझने के लिए भी वो सब कुछ, अपने समझ को, अपनी बुद्धि को, अपने पढ़ाई को, अपना ज्ञान को, सब कुछ वो कूड़ा समझकर प्रभु के पास कह रहा है कि प्रभु दुख सहता हूं, मैं कलवरी क्रूस समान दुख सहता हूं, पर मुझे समझना है कि तूने मुझे क्यों चुन लिया। तो प्रभु करे कि दाम देकर हम प्रभु के घर में, प्रभु के लिए, प्रभु किस लिए हमको नियुक्त किया, उसको समझने के लिए हम बलिदान पूर्वक उस आत्मा से हम उभरे कि जहां पर हम मॉडरेशन, सी आजकल क्या हो गया है, देयर इज अ स्पिरिट कॉल्ड स्पिरिट ऑफ मॉडरेशन, चलता है, एवरीथिंग इज ओके, ये कर सकते हैं, क्यों नहीं ब्रदर, कर सकते हैं, वहां जा सकते, क्यों नहीं, हो सकता है। दैट्स अ स्पिरिट ऑफ मॉडरेशन, मतलब इट्स वास्तव में कहो तो गुनगुना स्थिति है, बिल्कुल लौदीकिया की मंडली के समान, राइट? So it is like the church which was like lukewarm. It is, I don't remember the church, but गुनगुना सा परिस्थिति है, right? सब कुछ चलता है कि प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। God wants us to be, like a shining witness for Him, and for us to burn bright, we have to diminish, right? अगर आप लकड़े को देखोगे जलता है तो जलने के समय में अपने आप को खर्च कर देता है, अपने आप को खर्च कर वो प्रकाश को प्रज्वलित करता है। तो प्रभु करे ऐसे मन को हमारे अंदर, renewed spirit which is seeking to be spent for the Lord, ऐसे मन को प्रभु हमारे बीच में उत्पन्न करने के लिए आज सवेरे हम प्रार्थना के लिए समय बिताएंगे। जैसे लूका रचित सुसमाचार में 12 अध्याय में वो एक दृष्टांत है, लूक गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्सेस 43 से लेकर 46 के बीच में, पढ़ेंगे नहीं, पर वहां पर हम देखते हैं स्वामी दूर गांव गया है, सेवक काम कर रहे हैं, पर कुछ सेवक है जो ठंडे हो गए हैं। तो स्वामी आता है, अचानक से आता है, जब वो अपेक्षा ही नहीं करता, when he does not even expect it। और 46 वचन में कहता है ऐसे हम पाए जाएंगे तो बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। तो प्रभु करे ऐसे दुख से प्रभु हमको बचाएं, ताकि हम दाऊद के मन के समान, that's why Lord says, I mean one of the reasons why says that David is a man of my own heart, because जिस तरीके से मसीह अपने आप को खाली कर दिया, दाऊद भी हर विषय में प्रभु के लिए, प्रभु के घर के लिए अपने आप को खर्च करता है। ऐसे मन को प्रभु हमें प्रदान करे, क्योंकि अंतिम दिन है, प्रभु का आना बहुत शीघ्र है। हम प्रभु के लिए खर्च किए जाए, हमारा धन, हमारा सब कुछ, तो हमारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो कूड़ा है कर कहता है पौलुस। तो we have to be spent so that the Lord's name be glorified, His kingdom might be established. So आइए आज सवेरे के समय अपने आप के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे मन को व्यक्तिगत रीति से मंडली में और साथ में मंडली में ऐसा प्रभु उत्पन्न करे। सुसमाचार के विषय में जो कई लोग खर्च किए जा रहे हैं, कई संस्थाएं हैं, कई लोग अपने आप को, अपने सब कुछ निछावर कर प्रभु के लिए समर्पित हो रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए हमको बोझ दे, सहायता करें। विशेष करके जो गॉस्पेल आउटरीच में रहने वाले लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो काम किया जा रहा है कई हिब्रोन की मंडली के द्वारा और कई भी
so many missionary missions are there in this country. Many individuals are there who are being spent for the Lord. May the Lord help us to have burden for them, so that we pray for that work, and may many be added into the kingdom. बहुत सारे लोग प्रभु के घर में, प्रभु के राज्य में जुड़ जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ में जो मंडली के कई बातें हैं, जैसे बहन इंदिरा सूर्यवंशी अस्वस्थ है, उनके लिए भी हम प्रभु की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर उमा के लिए, डेविड आमोस के लिए, हमारे बुजुर्ग भाई बहनों के लिए, आने वाले इतवार की सेवकाई के लिए, विशेष करके दिवाली के समय में, छुट्टियों के दरमियान कई जगह, नेपाल में, बिहार में, बॉम्बे में, साउथ में भी कई जगह स्पेशल मीटिंग्स हो रही है। इन सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए, वचन फैले, प्रभु का कार्य बढ़े। 2 दिन पहले थर्सडे के दिन जालना में भी ओपन एयर हुआ है, प्रभु के दासों ने सेवकाई की है स्ट्रीट्स पे। और जो हमारे अंबाड़ी इत्यादि प्रांतों में भी जो सेवकाई हो रही है, पालघर में जो सेवकाई हो रही है, बोईसर में जो रुकावटें आ रही हैं, सबको जानते हैं हम। एक एक कर हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रभु से थोड़ा समय एक नए आत्मा को, एक नए रीति से प्रभु हमारे मनों के अंदर उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना करते हुए, कुछ बातों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थना के लिए 1 घंटा ही है हमारे पास। 5-6 मिनट, 6-7 मिनट से ज्यादा मत लीजिए, ताकि सबको मौका मिल सके। प्रभु हमारी सहायता करे, अगुवाई करें। आइए प्रार्थना में प्रवेश करते हैं। एक भाई और एक बहन